In the elasticity chapter, we understood the relation between the right quantity demanded with respect to change in the price, changes in the income, and changes in the prices of related goods. Three elasticities. So it is the responsiveness of quantity demanded with respect to change in the price of the commodity, or change in the income of the individual, or change in the prices of related goods. Three elasticities: price elasticity, income elasticity, and cross elasticity. So when you talk about price elasticity, you are talking about responsiveness of demand with respect to changes in the price of the commodity. When the price changes, quantity demanded also changes, and we have to quantify that change. If the change is more than one, means when a small change in the price brings larger than that change in the demand, your answer is greater than one, we say the demand is relatively elastic, greater than one. When a bigger change in the price brings smaller than that change in the demand, the answer is less than one, we say the price elasticity of the commodity is less than one, relatively inelastic. When a change in the price brings equal change in the demand, your answer is one, unitary price elasticity. When a, any change in the price, any change in the price does not change the demand. Demand is inelastic, it is perfectly inelastic. Answer is zero. You get a vertical line parallel to y-axis, which represents price on y-axis is changing, however quantity on x-axis is same. So any change in the price does not change quantity demanded, perfectly inelastic. It is vertical line parallel to y-axis. When very small change in the price brings infinite change in the quantity demanded, in that case we say it is perfectly elastic demand curve. Means it is horizontal to x-axis, quantity axis, parallel horizontal to x-axis. So when demand curve is greater than 1, when elasticity is greater than 1, try to understand, the curve is flatter and the goods are luxury goods. Curve is a flatter and goods are luxury goods. So you can see here a 10% change in the price, maybe up or down, try to understand. 10% change in the price changes demand by 20%. So a small change in the price brings larger change in the demand. It is answer is greater than 1. The curve is a flatter. So relatively elastic demand curves are flatter in the nature. The goods are luxury goods. When you give small discount, the quantity demanded increases drastically. In case of relatively inelastic, a bigger change in the price, almost 10% change in the price, brought less than that change in the demand, just 5% change in the demand. So you can see a larger change in the price brings smaller change in the demand. The demand curve is steeper, and this happens with the necessities. Okay? So relatively elastic demand curve is flatter curve, relatively inelastic demand curve is a steeper curve. Then there are two curves, one is flatter, another is steeper. So आप हमेशा बोल सकते हो flatter is more elastic than the steeper, or steeper is more inelastic than the flatter. This is unitary elasticity, in which a given change in the price brings equal change in the demand in both the way. The curve is rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola means any point on the curve has the same area. Every point on the given curve has the same area. Same area, I mean, if you're talking about the area for consumer, it is expenditure. If you're talking about that area for the seller, it is total revenue. Because
quantity multiply by price, quantity multiply by price, x axis multiply by y axis is area at a point. Buyer के लिए it is expenditure, seller के लिए वो sale है. So when expenditure and sale remain same irrespective of change in the price, हमने expenditure method भी सीखी थी, if you remember, उसमें हमने क्या देखा था, change in the price keeps expenditure और revenue same. जब ऐसे होता है हम उसको इज इक्वल टू 1 बोलते हैं, तो वो कर्व होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व. देन नेक्स्ट पॉइंट इज परफेक्टली inelastic demand, in which you can see any change in the price has changed from P1 to P2, P2 to P3 like that. The quantity demanded is same, OQ only. So change in the price does not changes demand at all. So you get a perpendicular line to x-axis, it is parallel line to y-axis. Perpendicular to x-axis, parallel to y-axis. समझ में आ रहा है? So this is perfectly inelastic demand curve. It means price कम हो या price ज़्यादा हो, right? The demand remains same. Demand remains same. Then आगे, the last thing is perfectly elastic demand, means the price is the same, almost price is the same. You cannot change the price, the demand changes. You will learn more this into CA फाउंडेशन जब हम परफेक्ट कंपटीशन करते हैं. हमारे 12th में इतना कुछ नहीं है, 12th में खाली इतना बोला है, ए वेरी स्मॉल चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स इन्फिनिट चेंज इन द डिमांड, दैट्स इट. इसका इंप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में कहां पे लिखा नहीं है. इन ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इसका जब हम इक्विलिब्रियम ढूंढते हैं तब इसका इंप्लीकेशन आता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो यू गेट ए horizontal perpendicular to y-axis, it is perpendicular to y-axis, horizontal line parallel to x-axis. और मैंने एक शॉर्टकट एक डायग्राम में मैंने सब क्लब किया था, राइट? दिस वाज माय डायग्राम जहां पे मैंने द 5 प्राइस इलास्टिसिटीज मैंने कवर किए थे. सो देयर आर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे सिलेबस में 3 इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड है. इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड 3: प्राइस, इनकम and cross. There are 5 types of price elasticity: greater than 1, less than 1, equal to 1, is equal to 0, is equal to infinite. 5 price elasticity. 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, राइट? इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड. आपको 3 चीजें लिखनी है: प्राइस इलास्टिसिटी, फिर आपको लिखना है इनकम इलास्टिसिटी, विच इज, इनकम इलास्टिसिटी क्या बोलता है? इनकम इलास्टिसिटी सेट, राइट, it is responsiveness of the quantity demanded with respect to change in the income. उसके भी अलग अलग आंसर हो सकते हैं, like, right, if income elasticity is a positive, means when income increases demand also increases. When you become rich you also demand more of that commodity, it is a positive. So those goods are normal goods. Yeah, if your income decreases you decrease their consumption, you decrease their demand. The movement is on the same direction, x axis and y axis moves in the same direction, इसलिए आंसर पॉजिटिव आता है. And the, or I will say, right, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम डायरेक्शन में मूव करते तो आंसर पॉजिटिव आएगा. Such goods are normal goods. And अगर उल्टा होता है, when income increases demand decreases, means as you are becoming rich and rich and rich, you are giving up a demand on that commodity, you are not buying that commodity, you are shifting to better commodity, means आप उस commodity की demand decrease करे when your income increases. So numerator is decreasing, denominator is increasing, answer is negative. Those goods are called as inferior goods. So basically 2 types of the income elasticity, negative and positive. Negative is of inferior goods, positive is normal goods. उसमें भी 2 आंसर होते, positive में भी. Necessities and luxuries. Necessities are those goods where income elasticity is positive but less than 1. Income elasticity is a positive but less than 1. And luxuries के केस में income elasticity is a positive and greater than 1. Means when I say positive but less than 1 for necessities, means as your income increases, you increase the demand of necessities but not by that much. आप
नेसेसिटीज की डिमांड इंक्रीज करोगे बट उतना नहीं करोगे जितने से लग्जरी की डिमांड इंक्रीज होती है. सो लग्जरी की डिमांड इंक्रीजेस बाय मोर देन इंक्रीज इन द इनकम. देयरफॉर द आंसर इज ग्रेटर देन 1. नेसेसिटीज की डिमांड इंक्रीज होती है बट लेस देन इंक्रीज इन द इनकम, देयरफॉर उसका आंसर पॉजिटिव बट लेस देन 1 होता है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव इंफीरियर गुड्स, income elasticity 0 to 1 necessities, income elasticity more than 1 luxury goods. Then comes your cross elasticity. Right, cross elasticity is, it is a responsiveness of change in the demand of a commodity X with respect to change in the prices of commodity Y. Y commodity is a related goods. So when the prices of related goods like complementary goods and substitute changes, the demand for the commodity X will obviously change. So there are two answers of the cross elasticity. One is a negative, another positive. जैसे हमने income elasticity में देखा दो आंसर्स होते हैं, वैसे क्रॉस इलास्टिसिटी में भी दो आंसर होंगे. नेगेटिव in case of complementary goods, in case of complementary goods, cross elasticity is a negative. Try to understand. Complementary goods में cross elasticity negative होती है because when the price of commodity Y increases, price of petrol increases. Why is the petrol? The demand for car will decrease. So changing the price of petrol and changing the demand for vehicle. Try to understand. जब price of petrol increases, demand for vehicle decreases. They are moving in opposite direction. Therefore, the answer is negative. Try to understand. And therefore, we say complementary goods have negative cross elasticity. हमने सीए फाउंडेशन में, जिन्होंने सीए फाउंडेशन किया उसमें मैंने उसको और इलेबोरेट किया था. मैंने बोला था कि इफ क्रॉस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव, ओके, अगर टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव होती है. क्या बोला था मैंने? इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एंड अगर बोलता है ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, तो योर आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव. बट अगर आपको कोई बोलता है कि क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है, मतलब वो गुड्स क्या कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? नॉट ऑलवेज. क्रॉस इलास्टिसिटी अगर नेगेटिव है, गुड्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और गुड्स कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. उल्टा नहीं है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी डेफिनेटली है. बट अगर नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है, डज नॉट ऑलवेज मीन कि वो राइट गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री होती है. वो सीए फाउंडेशन में थोड़ा और डीप में गए थे हम. मैं जस्ट एक लिंक कर रहा हूं, मतलब आपको क्लिक होगा. नेक्स्ट, एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन 12th एज वेल एज एट दैट लेवल. ध्यान देना. Positive cross elasticity is for the substitutes because when the price of tea increases, demand for the coffee also increases. So demand of coffee with respect to change in the price of tea. So you can see the movement in the same direction. Price of the tea increases, demand of the coffee also increases. Yeah, when price of the tea decreases, the substitute सस्ता हो जाता है, demand for the coffee will decrease. So numerator and denominator move in the same direction. Answer has to be positive. And therefore, complementary goods have negative cross elasticity and substitutes have positive cross elasticity. Are you getting my point? So this, right, one should understand this. So right now, अब क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. तो ये थे टाइप्स ऑफ राइट इलास्टिसिटी. दीज वर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी. कौन से थे? ये वाले. लेट मी शो यू टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी. प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी. हमने फॉर्मूला देखा था. It is percentage change in the quantity demanded of X divided by, if it is percentage change in the price of X, price elasticity. If it is percentage change in the income, it is income elasticity. If it is percentage change in the price of Y, it is a cross elasticity. ठीक है? नहीं, आपके इसमें इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी इतना डीप में नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, बट ये लिख लेना कोई लोग. ये अगर आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लेना. ये तो आपको इन डिटेल में प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, greater than 1, less than 1, is equal to 0, is equal to infinite. बराबर.
दूसरा इनकम इलास्टिसिटी, income elasticity can be negative, less than zero, that is बराबर. It is for inferior goods. आप इतना भी लिखते हो, देयर कैन बी टू आंसर्स बेसिकली. एक्चुअली देयर कैन बी जीरो एज वेल, ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी में, बट हम उसको देखते नहीं इतना. कैन बी पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, राइट. ऐसे लिखो पॉजिटिव, इसमें दो, ग्रेटर देन जीरो, बट या ऐसे, एक सेकंड, EY इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, इसको बोलते हैं नेसेसिटी. इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन, इसको बोलते हैं लग्जरी. ठीक है. नेक्स्ट क्रॉस इलास्टिसिटी. सो इनकम इलास्टिसिटी के 3 आंसर मिले, प्राइस इलास्टिसिटी के 5 आंसर, वो तो आपको लिखने ही लिखने, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो तो 8 मार्क का क्वेश्चन रहेगा. इनकम इलास्टिसिटी 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा या 2 मार्क के लिए आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक्सप्लेन 2 मार्क्स के लिए आएगा, 3 मार्क के लिए आ सकता है, 4 मार्क के लिए आ सकता है. तो यू कैन ऐड ए पॉइंट, देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी. नेगेटिव फॉर इंफीरियर गुड्स, positive but less than 1 for necessity goods, and greater than 1 for luxury goods. This can be one additional point. Cross elasticity. Cross elasticity, ध्यान देना, can be negative for complementary goods, and it can be positive for substitutes. Next, make it fast. Okay, next. Now, उसके बाद सो हमने क्या देखा, 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, प्राइस, इनकम, क्रॉस. फिर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. देन there are basically 3 methods of calculation of the price elasticity. 3 methods. कौन कौन से मेथड थी? एक परसेंटेज मेथड, बराबर ना, वो परसेंटेज मेथड यहां पे देखो हमने लिखा होगा, परसेंटेज मेथड और रेशियो मेथड और प्रोपोर्शनल मेथड. अलग अलग नाम है, परसेंटेज मेथड, रेशियो मेथड और योर विच
proportionate method और arithmetical method, ऐसे भी लोग बोलते हैं, ठीक है. So in this method the price elasticity is calculated as it is percentage change in the quantity demanded divided by percentage change in the price. So if you solve it, you get the formula like this. ये formula आपको मिलता है. This is your formula. Change in the quantity demanded divided by change in the price multiplied by old price upon old quantity. The second method is total expenditure, total outlay, or total revenue method. Try to understand. In this method, we study the relationship between the price of the commodity and the expenditure on the commodity. We study the relation between the price and the expenditure. And with that, we can tell the nature of the commodity. We cannot tell you exact वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी. हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल सकते, 0.5 0.6 ऐसे नहीं बोल सकते, 2 3 ऐसे नहीं बोल सकते, बट हम वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, वेदर ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1, इतना हम बोल सकते हैं. सो व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, सपोज पहले देखो, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस expenditure on the commodity also increases. Like petrol, price increases, expenditure also increases. Milk, price increases, expenditure also increases because you buy the same quantity. Try to understand, right? When the price decreases, expenditure also decreases. Electricity is another example. So when the price and the expenditure have same relation, direct relation, they move in the same direction. When price increases, expenditure also increases. When price decreases, expenditure also decreases. The elasticity is less than 1, relatively inelastic. The goods are necessities. On the contrary, अगर ये relation inverse है, मतलब when the price increases, expenditure decreases. मतलब जब चीजें महंगी होती है, people buy less of that. और उल्टा, when the price decreases, expenditure increases. जब आप डिस्काउंट देते हो चीजों पे तो उसका लोग ज्यादा परचेस करते हैं, एक्सपेंडिचर लोग ज्यादा करते हैं, रेवेन्यू इंक्रीज ज्यादा होता है, एज द केस में भी. Means they have to be luxury goods. So when the relation between the price and the expenditure is inverse, क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना. When the relation between the price and expenditure is inverse, the answer is greater than 1, relatively elastic, luxuries. On the contrary, when any change in the price does not change the expenditure, rectangular hyperbola curve like, it is equal to 1, unitary elastic. So यहाँ पे आपको आंसर नहीं बोल सकता मैं एग्जैक्टली. आई कैनॉट टेल यू द एग्जैक्ट आंसर कि कितना है, बट आई कैन क्लासिफाई द कमोडिटी वेदर इट इज लग्जरी, वेदर इट इज नेसेसिटी और यूनिटरी इलास्टिक. ठीक है. So this is called as total expenditure method, total outlay method. CA फाउंडेशन में उसको टोटल रेवेन्यू मेथड भी बोलते हैं. ठीक है. And the last point was the point elasticity. In the point elasticity, we have to go the two. When the demand curve is a linear line like this, or when demand curve is a non-linear line like this, हमें दो types के, try to understand. So when demand curve, right, point elasticity में दो types के हमें समझना है. Point elasticity. Point elasticity, ध्यान देना. When curve is linear demand curve, DD demand curve, non-linear demand curve. When I say linear demand curve, and we have to find the elasticity at any point. This is your linear demand curve. This is a linear demand curve. Try to understand. And this is non-linear demand curve.
This is non-linear demand curve. ठीक है, non-linear demand curve. When the demand curve is a linear, what you have to do, you have to extend the demand curve in a such a way that it will touch x-axis as well as it will touch y-axis. मैंने उसको extend किया, बराबर. Then right, you will get a point, right, 2 points, one touching the x-axis and another intersecting the y-axis. You have to calculate a point at this. You have to calculate elasticity at this point. Then what you have to do? You have to find the length below that point, that is length of lower segment, and you have to find the length of upper segment above the point. जिस पॉइंट पे हमें इलास्टिसिटी ढूंढनी है, उसके नीचे जो सेगमेंट है उसकी लेंथ ढूंढेंगे, उसके ऊपर जो सेगमेंट है उसकी लेंथ ढूंढेंगे, एंड देन वी विल अप्लाई द फार्मूला L upon U. Length of lower segment upon length of upper segment. समझ में आ रहा है? So at a midpoint, elasticity is equal to 1. Why? Because at a midpoint, length of lower segment is equal to length of upper segment. Any point below the midpoint, like this. Now you can easily say any point below the midpoint. So you have to find the length of the lower segment, जिस point पे हमें अब ढूंढना है उसके नीचे, and length of upper segment. You can easily say length of lower segment is less than length of upper segment. Your answer is less than 1. So any point below the midpoint, try to understand. Any point below the midpoint, the elasticity is less than 1. And any point above the midpoint, elasticity is greater than 1. Because length of lower segment will be greater than length of upper segment for any point above the midpoint. Where the demand curve touches x-axis, there is no, right, lower segment. So 0 upon anything is 0. The point where demand curve intersect y-axis, it is infinite. So try to understand. As we move upward on a demand curve, elasticity increases. As we move downward on a demand curve, elasticity decreases. Elasticity क्या होती है? Decrease होती है. In CA foundation, मैंने एक और चीज इससे बोली थी कि at a midpoint of the demand curve, the total revenue is a maximum. मैंने बोला था CA फाउंडेशन में, जो जिन लोगों को किया है तो उनको थोड़ा क्लिक हो जाएगा. At a midpoint of the demand curve, total revenue is a maximum. एंड जब टोटल मैक्सिमम होता है, मार्जिनल जीरो होता है. यूटिलिटी में देखा है आपने, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, मार्जिनल जीरो होती है. वैसे ही जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है. तो अगर आप यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू ढूंढते हो, दिस प्राइस एंड दिस क्वांटिटी का अगर आप टोटल रेवेन्यू देखते हो, दैट टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, एंड उसका अगर मार्जिनल रेवेन्यू ढूंढोगे, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी जीरो. ये जस्ट एक, मैं अभी कोई बच्चे फाउंडेशन के भी तो मैं उनको रिलेट कर रहा हूं, जिनका कुछ लेना देना नहीं, तो डोंट वरी एट ऑल. आगे नेक्स्ट ध्यान देना आगे. सो दैट इज द आंसर. सो बट इफ द कर्व इज नॉन लिनियर, if I keep on extending it, it will not touch x-axis, or it may not touch y-axis, or it may not touch both of the axis. किसी एक एक्सिस को टच नहीं करेगा या दोनों एक्सिस को टच नहीं कर सकती. बट हमें तो क्या करना होता है, हमें तो कर्व को ऐसे एक्सटेंड करना होता है सो दैट इट विल टच बोथ ऑफ द एक्सिस. इसमें एक एक्सिस या दोनों एक्सिस को टच नहीं करेगी. तो ऐसे केसेस में क्या करना है, तो जिस पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी ढूंढनी है, आपको क्या करना है, उस पॉइंट पे यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट. मुझे इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ढूंढनी है. सपोज I want to find out the elasticity at this point on the non-linear demand curve. So the problem with the non-linear demand curve, right, कि हम उसको extend करते हैं, it may not intersect the axis or both the axis.
तो ऐसे केसेस में जिस पॉइंट पे मुझे इलास्टिसिटी ढूंढनी है, आई विल ड्रॉ द टेंजेंट ऑन दैट पॉइंट, राइट, एंड देन आई विल फाइंड the length of lower segment of that tangent divided by length of upper segment, and accordingly I will get the answer. So this is my, right, the point elasticity method. So ऐसे तीन हमने समझे थे, राइट. एक था रेशियो मेथड, अरिथमेटिकल मेथड, प्रोपोर्शनल मेथड. दूसरा था टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल आउटलेट, टोटल रेवेन्यू मेथड, एंड द लास्ट वन वाज पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड. ठीक है. एंड एक था लाइक ये दो क्वेश्चंस अपने सिलेबस में नहीं है. कौन से थे? इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी एंड आई थिंक डिटरमिनेंट्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी. आई थिंक दोनों नहीं है, एक बार कंफर्म करो. दे हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस. ये सब हमने किया था. एक्चुअली तब मैंने टेक्स्ट बुक से बहुत सारी चीजें सिखाई थी. ओके, फिर भी मैं आपको 10 मिनट में मैं समझाता हूं. बहुत सिंपल पॉइंट है. यू मस्ट नो एज ए स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एग्जाम में नहीं, वो बात अलग है, ध्यान देना. बट ये बहुत इजी है समझने के लिए. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड. नेचर ऑफ द कमोडिटी. नेचर ऑफ द कमोडिटी डिसाइड्स द इलास्टिसिटी. अगर इट इज लग्जरी, द आंसर इज ग्रेटर देन 1. अगर नेसेसिटी, द आंसर इज लेस देन 1. सो कमोडिटी कौन सी है उसके हिसाब से, राइट, डिमांड इलास्टिसिटी डिसाइड होती है. देखो क्या लिखा है. बाय द नेचर वी कैन क्लासिफाई कमोडिटीज एज नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरी गुड्स. बराबर. गुड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, or your wants can be divided into comforts, necessities and luxuries. Demand for the necessities like food grains, medicines, textbooks is relatively inelastic. आपको हाईलाइट करके रखो चाहिए तो आपके टेक्स्ट बुक में, राइट. इन राइट आप लिख के रखना चाहिए तो या तो ऊपर लिख देना पॉइंट, राइट, अगर या यहां पे लिख दो, राइट, यहां पे लिख लेना नेसेसिटीज inelastic and luxuries बाजू में लिख दो. इतना पूरा भी पढ़ना नहीं है. luxuries elastic, right, and comforts and luxury goods like cars, perfumes, furniture, right, have relatively elastic demand. Necessities have inelastic, luxuries and comforts have इलास्टिक. अब ध्यान देना, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ये बहुत अच्छी चीज है. देखो अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट्स है, राइट, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स मतलब क्या? जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे उतने, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होता है. लाइक आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, सो जो भी प्राइस वो बोलेगा आपको उस प्राइस पे लेना होगा. बट अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट्स है, सब्स्टिट्यूट्स मतलब इक्वल क्वालिटी के बोल रहा हूं, अगर सब्स्टिट्यूट्स है, देन सपोज कोई एक प्राइस इंक्रीज करता है, द डिमांड फॉर अदर सब्स्टिट्यूट विल इंक्रीज बिकॉज उसकी प्राइस, जिसकी प्राइस इंक्रीज हुई ना उसकी डिमांड ड्रास्टिकली डिक्रीज होगी. जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी. तो ऑलवेज रिमेंबर, हायर द सब्स्टिट्यूट हायर इज द इलास्टिसिटी. Higher the substitutes, right, or closer the substitutes. Closer the substitutes. जितने क्लोज सब्स्टिट्यूट्स रहेंगे उतनी हायर इलास्टिसिटी रहती है. More is the elasticity. Like example, in perfect competition. In a perfect competition, हमने देखा है perfect competition वो मार्केट होता है जिसमें the seller sells perfect substitutes. आप सपोज पेट्रोल पंप का मैंने एक एग्जांपल दिया था समझाने के लिए. कोई भी पेट्रोल पंप पे जाओ, यू विल गेट द सेम क्वालिटी ऑफ पेट्रोल एट ए सेम प्राइस. तो कैन आई से दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट? यस. अगर कोई एक पेट्रोल पंप वाला प्राइस इंक्रीज करता है, नो वन विल बाय फ्रॉम हिम, एवरीवन विल बाय फ्रॉम, ऑल कस्टमर्स विल बाय फ्रॉम अदर पेट्रोल पंप जहां पे प्राइस सेम है, इंक्रीज नहीं हुई है. So try to understand, in a perfect competition, the sellers sell, infinite number of sellers, very large number of sellers sell homogeneous product to large number of buyers.
What is perfect competition? Where very large number of buyers, sorry, very large number of sellers sell homogeneous, perfect substitutes to large number of buyers at the same price. They cannot change the price. The price they cannot control. Price is controlled by the market, and the sellers have to accept the price. They are the price takers and not the price makers. Perfect competition. सो जब मैं बोल रहा हूं वहां पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, मतलब वहां पे क्रॉस, वहां पे जो इलास्टिसिटी रहेगी, प्राइस इलास्टिसिटी, वो रहेगी इनफाइनाइट. वो क्या रहेगी? इनफाइनाइट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या लिखा है. डिमांड फॉर द कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक इफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. जितने क्लोज सब्स्टिट्यूट्स रहेंगे उतनी इलास्टिसिटी हायर रहती है. अगर परफेक्ट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स रहेंगे तो क्रॉस आपकी जो इलास्टिसिटी रहेगी ना, प्राइस इलास्टिसिटी लो या आप उसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलो, जो कुछ भी, मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी भी इनफाइनाइट रहेगी एंड प्राइस इलास्टिसिटी भी इनफाइनाइट रहेगी. आगे लाइक फॉर एग्जांपल लेमन जूस, शुगर केन जूस, etc. But commodities having no close substitutes like salt, right, have inelastic demand. So जितना ज्यादा substitutes उतनी ज्यादा elasticity, जितने कम substitutes, जितने कम close substitutes उतनी कम elasticity. Next, number of uses. This is also important. जितने ज्यादा uses उतनी ज्यादा elasticity. Like electricity, जब इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पुट फॉर मल्टीपल यूज, इट इज अ कंपोजिट डिमांड. हम अलग अलग चीजों को उसको यूज कर सकते हैं. ध्यान देना, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज इन मेनी, राइट, फॉर मेनी पर्पजेस. सो अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? वी रिड्यूस द यूज एंड हम उसको खाली उन चीजों को यूज करते हैं जो इंपॉर्टेंट है. तो प्राइस इंक्रीज होने से वी रिड्यूस द यूज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बाय ग्रेटर एक्सटेंट. मिल्क इज अनदर एग्जांपल. मिल्क कैन बी यूज फॉर मेनी पर्पजेस, बट जब मिल्क की प्राइस इंक्रीज होती है हम उनको इंपॉर्टेंट चीजों के यूज कर सकते हैं, लाइक फीडिंग, लाइक द चाइल्ड, उनके लिए हम यूज करेंगे. हम यूज डिक्रीज करते हैं. सो अगर वही चीजें सस्ती होती है, वी स्टार्ट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मिल्क फॉर मेनी पर्पजेस. अगर वो चीजें सस्ती होगी तो यूज इंक्रीज होगा, अगर महंगी होगी तो यूज कम होगा. मीन्स दे आर रिलेटिवली इलास्टिक. थोड़ी प्राइस का इंक्रीज हो गई, यूज कंजम्पशन ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया. प्राइस कम क्या हो गई? कंजम्पशन ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो ये समझना इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रिसिटी मिल्क के केस में ये हो सकता है, राइट. सो हायर द यूजेस, हायर द इलास्टिसिटी, एंड वाइस वर्सा. हायर द अल्टरनेटिव यूजेस, higher is the elasticity. Higher is the elasticity. Then habits. जो चीजें हैबिचुअल होती है, लाइक एग्जांपल सिगारेट्स रहा, ड्रग्स रहा, टोबैको रहा, ड्रिंकिंग रहा, अल्कोहल, टी, कॉफी, लोग हैबिचुअल होते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो प्राइस कितनी भी हो, पीपल डू नॉट डिक्रीज द कंजम्पशन. प्राइस इंक्रीज हो रही है, उनकी डिमांड सेम है, या डिमांड डिक्रीज होगी बट नॉट टू दैट एक्सटेंट. सो आईटीसी वगैरह दे कीप ऑन इंक्रीजिंग प्राइसेस बट उनकी डिमांड डिक्रीज नहीं होती है, बिकॉज़ दे नो देयर कमोडिटीज आर हैबिचुअल इन द नेचर, राइट. तो ऐसे कमोडिटीज की डिमांड इनइलास्टिक होती है. दे बिकम लाइक योर नेसेसिटीज, विदाउट दैट यू कैन नॉट सर्वाइव. लाइक मोबाइल्स, उनकी प्राइस कितनी इंक्रीज हो रही है फिर भी डिमांड डिक्रीज नहीं होती टू सम एक्सटेंट. आप देख सकते हो. रीजन इज वेरी सिंपल. रीजन इज वेरी सिंपल, because they are habitual in the, right. So example, when I came to Pune, चाय की प्राइस 5 रुपए थी in Good Luck at Deccan. When I pass out, the price was 30 rupees. Still I was consuming. मैं डेली नाइट वहां पे पढ़ाई के टाइम चाय पीने जाता था 11 से सीए फाइनल तक. लेटर आई चेंज द एरिया, इसलिए वहां पे नहीं जाता, बट मैं बोल रहा हूँ आपको. सो 5 रुपीज था तो भी मैं चाय लेता था, 30 रुपीज था तभी मैं चाय लेता था. So the price increased till my demand didn't decrease. I was got habitual to that. So वही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. Habitual goods have inelastic demand. Inelastic. Habits make demand for certain goods relatively inelastic. Addicted goods, drugs, tea,
सिगारेट्स, सिगार्स एक्सेट्रा। ड्यूरेबिलिटी, जितने गुड ड्यूरेबल रहेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इन्होंने किस एंगल से लिखा है मुझे देखने दो। द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, एंड डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स इज इनइलास्टिक। मतलब अगर आपको लेना है तो अभी ले, तो बाद में नहीं मिलेगा, वेरी सिंपल। सो डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज इलास्टिक। जितना ज्यादा टाइम जोन उतनी हायर इलास्टिसिटी। ड्यूरेबल गुड्स हैव इलास्टिक डिमांड, राइट। पेरिशेबल गुड्स हैव इनइलास्टिक डिमांड। मतलब पेरिशेबल गुड टिकेंगे नहीं ना, कि चलो बाद में डिमांड करेंगे, ऐसे नहीं होता है। लेना है तो अब भी ले, नहीं तो मत ले, सिंपल। देन आगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ध्यान देना, मैंने पहले ही बोला कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, राइट, ध्यान देना। और नेसेसिटीज के देखो, कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट्स रहेंगे तो पॉजिटिव इलास्टिसिटी रहती है, हायर इलास्टिसिटी रहती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब एग्जांपल, इफ आई हैव परचेस आईपैड, अगर मैंने आईपैड परचेस किया तो मुझे पेंसिल परचेस करनी ही पड़ेगी, देन ओनली आई कैन राइट। सो कैन आई से डिमांड ऑफ पेंसिल इज इनइलास्टिक विथ रिस्पेक्ट टू आईपैड। जिसने आईपैड लिया है उसको पेंसिल लेनी ही पड़ेगी। Nowadays you buy the mobiles and you don't get the charger, you have to buy charger separately। क्यों वो अलग से उसको चार्ज कर रहे, वो अलग से क्यों चार्ज कर रहे, कोई रीजन? बिकॉज दे नो जिसने मोबाइल लिया है उसको चार्जर लेना ही पड़ेगा, एंड देयरफॉर दे आर चार्जिंग सेपरेटली। देयर आर सम कंपनीज, देयर आर सम मोबाइल सेलर्स कि जो अलग से चार्जर की प्राइस लगाते हैं। एप्पल इज अनदर एग्जांपल, हेडसेट वगैरह। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। सो अगर कोई दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट्री टू द आईपैड, तो अगर मुझे मैंने आईपैड लिया तो मैं लेना ही पड़ेगा। इसकी प्राइस फिर 10,000 हो, 5,000 हो या 12,000 हो, स्टिल आई हैव टू बाय इट। सो प्राइस 12,000 तो भी मैं एक ही पेंसिल लेने वाला हूँ, 10,000 है तो भी एक ही लेने वाला हूँ, 5,000 है तो भी एक लेने वाला हूँ। सो डिमांड फॉर दिस पेंसिल बिकम इनइलास्टिक विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड फॉर द iPad. Demand for the charger became inelastic with respect to demand for the mobile. So complementary goods की demand inelastic होती है। So the demand for the commodity which is used in the conjunction with the other commodities to satisfy single want is relatively inelastic. For example, a fall in the price of the mobile headsets may lead to, right, rise in the demand for the सिम कार्ड। अच्छा, राइट, ध्यान देना, इसमें एग्जांपल लिखना मोबाइल एंड चार्जर। दूसरा एग्जांपल लिखना आईपैड एंड आई पेंसिल। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, जहां से आपको समझ में आ जाएगा। अगर जिसके पास व्हीकल है उसके लिए, जिसके पास व्हीकल है उसके लिए पेट्रोल की डिमांड इनइलास्टिक होती है, बिकॉज वो पेट्रोल लेगा ही लेगा। लॉजिकल है, देखो, जिसके पास व्हीकल है वो पेट्रोल लेगा, जिसके पास प्रिंटर है वो कार्ट्रिज लेगा ही, जिसके पास प्रिंटर है वो पेजेस लेगा ही। उल्टा नहीं होता कि पेजेस है इसलिए प्रिंटर लो, पेट्रोल है इसलिए व्हीकल लो, ऐसे नहीं होता है। सो जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उसमें से एक मेन गुड होता है पेरेंट गुड, एंड दूसरा उस पर डिपेंड रहता है, डिपेंडेंट गुड रहता है। आपने मोबाइल लिया इसलिए चार्जर लिया, उल्टा नहीं कि आपके घर में चार्जर पड़ा इसलिए मोबाइल लो, ऐसे नहीं होता है। आपके पास आईपैड है इसलिए आप पेंसिल लेते हो, पेंसिल इसलिए आईपैड नहीं लेते। लॉजिकल सोचो, रैशनल पर्सन क्या करेगा, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। सो जब भी मैं जो सेकेंडरी कमोडिटी ना उसकी डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट कमोडिटी इज इनइलास्टिक, ठीक है। आगे सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की इन, राइट, जो सेकेंडरी गुड्स होते हैं ना उसकी डिमांड, राइट, मेन गुड्स के कंपैरेटिव में इनइलास्टिक होती है। आगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यस, एज यू बिकम रिच एंड रिच एंड रिच, प्राइजेस डू नॉट मेक एनी सेंस फॉर यू। जब आप पुअर होते हो तो यू आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स प्राइजेस, चेंज इन द प्राइजेस, बिकॉज यू हैव टू स्पेंड ऑन देम। बट जब आप रिच होते हो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता। लाइक आप लोग, कोई लोग ऐसे बोलते हैं मेरा लाइफ में ये टारगेट है कि मुझे प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े, मुझे इतना बड़ा होना है
मुझे इतना कमाना है कि मुझे प्राइस टैग देखने की जरूरत ना, मैं जिसमें हाथ रखूं मैं परचेस कर सकूं। जैसे आजकल हम जाते तो हम प्राइस देख के डिसाइड करते लेना है नहीं लेना है, वी आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द प्राइसेस। बट जो रिच होता है ही डजंट चेक, तो दे ध्यान देना वो सेंसिटिव नहीं है फॉर द चेंजेस इन द प्राइसेस, वो लेता ही है। तो जो रिच होता है वो सेंसिटिव नहीं है, वो इनइलास्टिक है। बट जो पुअर है वो सेंसिटिव है, ही इज इलास्टिक। सो वही लिखा होगा, डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इनइलास्टिक इफ द कंज्यूमर हैज हाई इनकम। सो रिच के लिए, रिच की डिमांड जनरली इनइलास्टिक होती है एज कंपेयर टू पुअर, एंड पुअर की डिमांड एज कंपेयर टू रिच इलास्टिक होती है। द डिमांड पैटर्न of very rich and extremely poor is rarely affected by significant changes in the prices। ठीक है, वेरी पुअर हो वैसे भी बाय नहीं करेगा, वेरी रिच वालों को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आगे, अर्जेंसी ऑफ द नीड्स, कितने अर्जेंट है। ध्यान देना, एक्सीडेंट हुआ है एंड ऑपरेशन करना है, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना है, आप उसको बोलते हो कि आपकी डिस्काउंट कब, दिवाली में डिस्काउंट दोगे तब एडमिट करूंगा, नहीं। आप बोलते हो, डॉक्टर को बोलते हो कितना भी खर्चा है हम देने को रेडी है, आप ऑपरेट करो, बिकॉज वो अर्जेंसी है। जब अर्जेंसी होती है यू डोंट थिंक अबाउट द प्राइजेस, आप प्राइजेस को देखते नहीं, आप इग्नोर करते हो। ध्यान देना, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। सो जो चीज अर्जेंट होती है यू आर रेडी टू पे इवन हायर प्राइजेस फॉर सच कमोडिटीज। सो हायर, लाइक मोर अर्जेंट, लेस इनइलास्टिक। बट अगर एग्जांपल, राइट, आपको कार परचेस करनी उतनी अर्जेंट नहीं है और वो बोलता है कि 4-5 मंथ में आ जाओ सर, आपको खासा डिस्काउंट मिलेगा, दिवाली वगैरह फेस्टिवल सीजन रहेंगे, राइट, डिस्काउंट की स्कीम चलेगी, आप तब लेना। यू पोस्टपोन योर कंजम्पशन बिकॉज इट इज नॉट दैट मच अर्जेंट। सो ऑपरेशन करना अर्जेंट है तो जितना चाहिए आप उतना देने को रेडी हो। बट जब आप कार लेने जा रहे हो जिसकी डिमांड अर्जेंट नहीं है, आप कुछ दिनों के बाद भी लेते हो बिकॉज यू कैन पोस्टपोन इट। अगर अर्जेंट है तो पोस्टपोन नहीं कर सकते, आप 10 जगह पे जाके चेक नहीं कर सकते, यू डोंट हैव दैट मच टाइम, इट इज अर्जेंट। आप बोलते हो जो भी है पैसा ले लो और मुझे दे दो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, जब लेस अर्जेंट होता है यू कैन पोस्टपोन द कंजम्पशन, यू कैन वेट टिल द प्राइसेस डिक्रीजेस एंड देन यू विल बाय। तो सिंपल है, राइट, अगर अर्जेंट है मींस यू कैन नॉट पोस्टपोन, दैट इज कैन नॉट पोस्टपोन। देन इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। बट अगर लेस अर्जेंट है दैट इज यू कैन पोस्टपोन, हाँ बाद में भी परचेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैन बी पोस्ट, कैन बी पोस्टपोन। तो हम उसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, बाद में भी ले सकते हैं। गुड्स विच आर अर्जेंटली नीडेड हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, फॉर एग्जांपल मेडिसिन। लग्जरी गुड्स विच आर लेस अर्जेंट हैव रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। टाइम पीरियड का भी वही है, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है एडजस्ट करने के लिए, मतलब लेस अर्जेंट है, आपके पास टाइम ज्यादा है, आप 10 दुकान में जाके देख सकते हो प्राइस कहां पे कम मिल रही है, यू कैन वेट प्राइसेस डिक्रीज होने तक, इलास्टिक। बट अगर आपके पास टाइम उतना नहीं है तो जो भी रेट पे आपको मिल रहा है आप उस रेट पे लोगे, इन इलास्टिक। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड ऑलवेज रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ द टाइम इन्वॉल्व्ड, इट वेरीज विद द लेंथ ऑफ द टाइम। जितनी ज्यादा हायर लेंथ रहेगी टाइम की, जितना ज्यादा टाइम गैप रहेगा, जितना टाइम ज्यादा मिलेगा उतनी इलास्टिसिटी ज्यादा मिलेगी, बिकॉज यू कैन चेक द सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, जनरली स्पीकिंग लॉन्गर द ड्यूरेशन of the period greater will be the elasticity of the demand and vice versa। जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी। आप यू कैन कंपेयर दिस विद दिस, जितना ज्यादा टाइम है मतलब यू कैन पोस्टपोन, तो यू कैन राइट पोस्टपोन, यू कैन वेट द टिल द प्राइस डिक्रीजेस, तो आपकी इलास्टिसिटी हायर रहेगी। एंड अगर टाइम कम है तो यू कैन नॉट पोस्टपोन, आपको तुरंत परचेस करना है, जो भी प्राइस रहेगी आप देके आओगे इन इलास्टिक।
This is because consumer can change the consumption habits in the long run in favor of the cheaper substitutes of the commodities. So these are some of the determinants of the demand, elasticity of the demand. Nature, कमोडिटी का नेचर के हिसाब से हमें इलास्टिसिटी पता चलती है, उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक सब्स्टिट्यूट्स एंड दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी, जितने कम सब्स्टिट्यूट उतनी कम इलास्टिसिटी. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो सेकेंडरी गुड्स होता है उसकी इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू मेन गुड इज ऑलवेज इनइलास्टिक. देन जितने ज्यादा यूजेस उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी, जितने कम यूजेस उतनी कम इलास्टिसिटी. हैबिचुअल गुड्स हैव नेसेसरी, दे आर लाइक नेसेसिटीज इनइलास्टिक इन द नेचर. ड्यूरेबिलिटी, जितने गुड्स ड्यूरेबल रहेंगे उतनी उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगी. अगर दे आर पेरिशेबल इन द नेचर, उनकी इलास्टिसिटी इनइलास्टिक रहेगी. इनकम जो रिच रहता है उसके लिए जनरली इनइलास्टिक डिमांड रहती है, पुअर के लिए इलास्टिक डिमांड होती है. अगर अर्जेंट है तो इनइलास्टिक, अगर लेस अर्जेंट है तो इलास्टिक. अगर टाइम पीरियड कम है तो इनइलास्टिक, अगर टाइम पीरियड ज्यादा है तो इलास्टिक. सो दीज आर द एग्जांपल्स. ठीक है, देन इंपॉर्टेंस ऑफ द, अगेन ये भी नहीं है आपके सिलेबस में, बट एक बार समझ लेना बिकॉज दिस कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड कहां पे यूज होता है? बहुत जगह पे यूज होता है. बायर यूज करता है, सेलर यूज करता है, गवर्नमेंट यूज करती है, फाइनेंस मिनिस्टर यूज करता है, मोनोपोली वाला यूज करता है. देयर आर मेनी राइट जहां पे इलास्टिसिटी की कंसेप्ट यूज होती है. सबसे पहले इंपॉर्टेंस फॉर द प्रोड्यूसर. क्यों? कोई भी प्रोड्यूसर कौन से गुड्स परचेस करना चाहता है, प्रोड्यूस करना चाहता है, प्रोड्यूसर के सेल करना चाहता है, वो जनरली वो देखता है कि जिसमें वो कितनी भी प्राइस लगाए तो भी डिमांड कम ना हो. प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? ही कैन सेल एज मच एज पॉसिबल एट ए हायर प्राइस. मतलब प्राइस ज्यादा हो फिर भी डिमांड कम ना हो. ही इज टॉकिंग अबाउट इनइलास्टिक. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आप मोबाइल सर्विसेज देखोगे, दे आर मेकिंग डेटा चार्जेबल एंड कॉलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, बट डेटा टुडे हैज बिकम नेसेसिटी. सो प्राइस ज्यादा भी रखेंगे तो भी लोग परचेस करेंगे. देखो मेडिसिन, लोग डॉक्टर सीए क्यों करते हैं? क्यों? ये जनरली दो ज्यादा प्रोफेशनल फेमस है बिकॉज इनकी जरूरत हमेशा रहती है. अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, इनकी जरूरत रहती ही रहती है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? उनकी डिमांड कम नहीं होती है. दे कैन चार्ज इवन हायर प्राइस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो मैं वही बोल रहा हूं. तो हम वो कमोडिटीज प्रोड्यूस करना चाहते हैं जहां जिनकी डिमांड इनइलास्टिक हो. सो देखो क्या लिखा, एवरी प्रोड्यूसर हैज टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द हिज प्रोडक्ट एट विच ही कैन सेल इट. अगर वो लग्जरी में डील कर रहा है, अगर प्रोड्यूसर लग्जरी, एक्चुअली एज अ प्रोड्यूसर you should look for the inelastic demand product. As a producer you should look for inelastic demand product. necessities में डील करो. लाइक एग्जांपल मेडिसिन वाला, पूरे लॉकडाउन में सब दुकान बंद थे बट मेडिसिन वाला चालू था, हॉस्पिटल वाला चालू था. एग्जांपल, उन्होंने बहुत कमाया उस पीरियड में बिकॉज दोज वर द नेसेसिटीज. इवन गवर्नमेंट कैन नॉट स्टॉप देम. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो मैं वही बोल रहा हूं, एज ए प्रोड्यूसर आप वो गुड्स प्रोड्यूस करो जिनकी डिमांड इनइलास्टिक है. या अगर ऐसे नहीं सोच रहे हो तो आप ऐसे सोचो, जो प्रोडक्ट्स में आप सेल कर रहे हो, डील कर रहे हो, उसकी इलास्टिसिटी क्या है. इफ द इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, मतलब अगर वो कोड्स इलास्टिक इन द नेचर है, या अगर उसका नेचर ग्रेटर देन 1 है, इलास्टिक है, तो आपने प्राइस कम रखनी है बिकॉज आप लग्जरी में डील कर रहे हो. इफ यू आर डीलिंग इन लग्जरी, इफ यू आर डीलिंग इन लग्जरी, तो आपको क्या करना है? कीप द लोअर प्राइस. कीप लोअर प्राइस, तो ही आप बिजनेस अच्छे से करोगे. बट अगर आप नेसेसिटी में डील कर रहे हो तो प्रोड्यूसर ने क्या करना है? कीप द हायर प्राइस. हाई प्राइस रख के भी उसका सेल उतना ही होगा, राइट? ही कैन अर्न मोर. कीप हायर प्राइस. सो देखो, every producer has to decide the price of his product at which he has to sell it. For this purpose, elasticity of the demand becomes very important. If the demand for the product is relatively inelastic, मतलब he is dealing in necessity. बराबर.
he will fix a higher price and vice versa. बराबर. This concept, the concept of the elasticity of demand is also useful to the monopolist to practice price discrimination. अलग कस्टमर्स को अलग प्राइस लगाना, अलग कस्टमर्स को अलग प्राइस लगाना is a price discrimination. And monopolist uses elasticity concept to discriminate the prices. आपके 12th में नहीं है वो, सी फाउंडेशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलग से कंसेप्ट है, उसमें एक्चुअली हम समझेंगे कि कैसे वो अलग कस्टमर्स को अलग प्राइस लगाता है, कितना लगाता है, कैसे लगाता है, वो सब चीजें रहेगी सीए फाउंडेशन के सिलेबस में, 12th में नहीं. सो एज इंपॉर्टेंस फॉर द प्रोड्यूसर, ये इंपॉर्टेंस है. गवर्नमेंट के लिए क्या, गवर्नमेंट टैक्सेस किसको लगाती है, रिच को, पुअर को नहीं. क्यों, बिकॉज रिच के लिए मनी की वैल्यू एज कंपेयर टू पुअर इज लेस. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. इलास्टिसिटी is of the money for rich is less as compared to poor, so he can happily give away the taxes. poor नहीं देगा, so rich को ज्यादा टैक्स लगाओ, right, and poor को टैक्स मत लगाओ. this is stems from the concept of the utility and the concept of the elasticity. ध्यान देना, taxation policy of the government is based on concept of the elasticity of the demand. those commodities whose demand is relatively inelastic, सिगारेट्स उस पे टैक्स से ज्यादा है, लिकर उस पे टैक्स से ज्यादा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सिगारेट्स, ध्यान देना, लिकर, ड्रग्स, वो ऐसे नेसेसिटीज है जिन पे टैक्सेस आए, बिकॉज गवर्नमेंट को पता है इन लोग आएंगे और लोग परचेस ही करेंगे, सो गवर्नमेंट उन पे टैक्सेस लगाती है. उससे क्या होता है, टैक्सेस लगाने से उसकी प्राइस इंक्रीज होगी. कोई लोग तो छोड़ देंगे, सोसाइटी के लिए अच्छा ही है, या गवर्नमेंट को टैक्स भी ज्यादा मिलेगा. व्हाई गवर्नमेंट आर सो एम्फेसाइजिंग कि लॉकडाउन में लिकर शॉप ओपन हो, बिकॉज कितने भी बुरे दिन हो पीने वाले छोड़ेंगे नहीं, दे विल स्टिल कीप ऑन ड्रिंकिंग, एंड उससे गवर्नमेंट को टैक्स जनरेट होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. देयर आर टू क्लासेस कि लोग बोल रहे हैं टेम्पल्स ओपन करनी चाहिए या लिकर शॉप ओपन करनी चाहिए. एज ए इकोनॉमिस्ट मैं लिकर शॉप बोलूंगा, ना कि टेम्पल्स. बिकॉज टेम्पल्स में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, टेम्पल का मनी टेम्पल के पास रहता है, उससे जितना इकोनॉमी डेवलप नहीं होगी जितने लिकर शॉप ओपन होने से इकोनॉमी डेवलप होगी. दैट इज अ फैक्ट. आई एम नॉट ए सपोर्टर ऑफ अदर गवर्नमेंट वगैरह, वैसे कुछ नहीं, बट एज ए प्रैक्टिकल अप्रोच ये समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें टैक्सेस गवर्नमेंट एक्चुअली कलेक्ट करेगी. एंड जो आप टेम्पल्स की बात करते हो जिसमें लोग डोनेट करते हैं, those temples do not come forward and help the people. That is a fact that I have seen during the lockdown. Government ने प्रेस करने के बाद they donated, otherwise they didn't donate on their own. There are temples in the Pune जो लोगों को 3-4 मंथ, गरीब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली खिला भी सकते थे, 2 टाइम का खाना. दैट वाज पॉसिबल, जो गुरुद्वारा करता है. आई अप्रिशिएट दैट, बट देयर आर सम टेम्पल्स इन पुणे जिन्होंने किया नहीं. हम नगर की बात करता हूं, शिरडी का टेम्पल इजीली 10-15 हजार लोगों को डेली खिला सकता है ड्यूरिंग लॉकडाउन, बट दे डिडंट. छोटे छोटे लोग, तुम्हारे जैसे लोग, बच्चे जो खुद के पॉकेट मनी से पैसे जोड़ के लोगों को दे रहे थे. तो वी अप्रिशिएट सच पीपल. सो टेम्पल ओपन करना, आई वाज नेवर इन फेवर फॉर द इकोनॉमी. बोल रहा हूं, पॉलिटिक्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. टेम्पल ओपन करने से आप बोलोगे सर वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ये होता है, वो होता है, वो फैक्ट करेक्ट है, बट उसको पॉलिटिकल एजेंडा किया गया. बट मैं क्या बोल रहा हूं, लीकर शॉप से एक्चुअली टैक्स कलेक्ट होंगे, और जो टेम्पल के आजू बाजू में बिजनेस करते हैं वो कितना टैक्स पे करते हैं ये भी आपको पता है. दे इवन डोंट गिव यू रिसिट. आप नारियल परचेस करके भगवान को देते हो, वो नारियल वाला आपको रिसिट नहीं देता, तो क्या टैक्स कलेक्ट हो रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक. बट लिकर शॉप पे एक्साइज कस्टम का इतना स्ट्रांग होल्ड है, वहां पे टैक्स होता ही है, गवर्नमेंट कलेक्ट ही करती है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. पॉलिटिक्स कीप्स अपार्ट. एज ए स्टूडेंट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी टू ओपन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो ऐसा नहीं कि टेम्पल्स हमेशा क्लोज होने चाहिए, ओपन होनी चाहिए. ऑब्वियसली देयर इज सम सेगमेंट जो उस पर डिपेंड करता है, बट व्हाट इज द प्रायोरिटी, ये मैं इसकी मैं बात कर रहा हूं. एंड दूसरी बात ये भी थी कि जैसे हम बोलते हैं जीएसटी
liquor is not under GST. Try to understand. Petroleum products are not under GST. They are still under VAT and they are the levy of the state government. तो उसका कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है. इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स not in Maharashtra, all over India were more focusing or more asking central government to allow them to open the liquor shops. देखो फिर गवर्नमेंट उसका करप्शन करेगी नहीं करेगी उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, राइट. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. मुझे वो पता भी नहीं और मुझे करना भी नहीं है. बट मैं बोल रहा हूँ कि कलेक्शन के पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूँ. उसका यूटिलाइजेशन क्या है आई डोंट नो, और वो कोई भी नहीं बोल सकता टू बी वेरी फ्रैंक. सो उससे टैक्स कलेक्ट होगा. सो ध्यान देना, गवर्नमेंट टैक्स टेम्पल पे जाते उनको नहीं लगाती, जो लिकर शॉप में जाते वहां पे टैक्स लगाती. बिकॉज राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वहां पे राइट पीपल हैव इन लाइक विच इलास्टिसिटी, इन इलास्टिक डिमांड. सो सिगारेट्स रहा, राइट, लिकर शॉप्स रहा, या मैं आपको बोल सकता हूं वही मेडिसिन, उस पे गवर्नमेंट टैक्सेस कम क्यों लगाती है, राइट. एजुकेशन, कॉलेज, स्कूल वगैरह उसमें टैक्सेस क्यों नहीं लगाती, वो भी नेसेसिटीज है ना. उनके डिमांड इनइलास्टिक है बट वो आते हैं पब्लिक यूटिलिटीज में. वो चीजें सोसाइटी के लिए अच्छी है. लिकर, सिगारेट्स, ड्रग्स, अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी. आप बोलोगे सर सोसाइटी के लिए क्यों अच्छी नहीं, आप तो बोल रहे टैक्स मिलता है. बट सब लोग जो ड्रिंकिंग करते हैं वो सब अच्छे होते हैं ऐसी बात नहीं. कोई लोग जाके घर पे अपने वाइफ को मारने वाले भी लोग हैं, ऐसे आपने केसेस भी सुने. जनरली इनका तो नंबर ज्यादा है. ड्यूरिंग लॉकडाउन झगड़े, नंबर ऑफ डिवोर्स हैज इंक्रीज, ये भी आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो. दीज आर सम साइड इफेक्ट्स, ये साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो आप बोलोगे सर हम ड्रिंक करते, हमें ऐसा कुछ नहीं करते. तुम लोगों से मत जज करो ना. वी आर नॉट पर्टिकुलर. जब भी इकोनॉमिक्स बात करते हैं हम जनरल की बात करते हैं यार. ट्राई टू अंडरस्टैंड. महाराष्ट्र डेवलप है मतलब बिहार एंड यूपी डेवलप है, इसका मतलब ऐसे नहीं होता. दे आर अंडर डेवलप, स्टिल टुडे दे आर अंडर डेवलप. आई एम ए महाराष्ट्रियन, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि हम बहुत 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 बेटर है. बिकॉज आई हैव ट्रैवल इंडिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली. एंड आई टेक ए प्राइड बीइंग पुणेकर. ऑब्वियसली ऐसी सिटी नहीं मिलेगी जहां पे रात को 12 बजे लड़कियां घूम सकती है विदाउट एनी टेंशन. नहीं है, मुझे दिखाओ कोई सिटी. बॉम्बे कैन बी वन बट नॉट एज सेफ एज पुणे, बिकॉज पुणे के लोग वैसे, यू कैन से कल्चर, वेल बिहेव्ड, यस. तो ऑब्वियसली ये प्राउड लेना चाहिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंगना एंड एवरीथिंग बिकॉज आई डोंट वॉच द न्यूज, मैं बंद कर दिया हूं. लेकिन मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, महाराष्ट्र इज ऑलवेज बेटर देन एनी अदर स्टेट इन इंडिया, ये समझ लेना. एंड वी आर फॉर्चुनेट, वी आर हियर. तो किसने क्या बोला उससे हमें लेना देना नहीं है, बट मैं आपको समझा रहा हूं, मैं जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट, फिर रेलवे इज अ नेसेसिटी, पुणे म्युनिसिपल पीएमटीज इज नेसेसिटी, उन पे इतने टैक्सेस क्यों नहीं है, बिकॉज दे आर पब्लिक यूटिलिटीज, तो इसमें आ जाते हैं वो. ठीक है. इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज लाइक रेलवेज which have an inelastic demand, government can either subsidize or nationalize them to avoid consumer exploitation. Example, मैं आपको बोलता हूं why government does not allow private to enter into public utilities. Like example, education has been privatized. So you know the public schools, government schools and the private schools. Private schools की fees is 80,000, 90,000, 1 lakh. आप लोगों ने पेड की है, मैंने कभी नहीं पेड की. I was a ZP student. बट आप लोगों ने पेड़ की, बहुत लोगों ने, आपको पता है. तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देना. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. यू पेड 80,000, 90,000. आप बोलोगे सर एजुकेशन भी वैसे, आई डू एग्री. सच्ची में एजुकेशन अच्छा होता है, देयरफॉर यू पे. बट अगर वही गवर्नमेंट स्कूल्स में वो एजुकेशन दिया जाए जो दिल्ली में हुआ है, वो यू कैन क्रिटिसाइज हिम एनीथिंग, बट स्कूल्स अच्छे किए ये एक्सेप्ट करो. बाकी सब चीजें गलत हो सकती है बट स्कूल्स अच्छे किए, दैट इज अ फैक्ट. सो स्कूल्स अच्छे किए तो वहां पे द एनरोलमेंट, एंड ये हम नहीं बोल रहे हैं, मीडिया नहीं बोल रही है, ये वहां का नंबर बोल रहा है. द एनरोलमेंट्स इन द पब्लिक स्कूल्स हैव इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द लास्ट 5 years. बाकी चीजों की मैं बात नहीं कर रहा हूं. एक कितना भी बुरा हो, रावण में भी कोई एक अच्छा पॉइंट था, ही वाज अ गुड शिव भक्त. तो हर एक में एक अच्छा पॉइंट तो रहेगा, तो उसमें से एक पॉइंट तो आप अच्छा देख सकते हो कि उन्होंने स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स को अच्छा किया, बराबर. सो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. तो अगर पब्लिक स्कूल्स अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली वहां पे भी एनरोलमेंट इंक्रीज होगी. बट जो हमारे ऑल पॉलिटिशियंस इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज, दे हैव देयर ओन स्कूल्स. सो ऑब्वियसली दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पब्लिक स्कूल्स. अगर पब्लिक स्कूल अच्छे हो गए तो उनके स्कूल्स बंद हो जाएंगे.
There is a fact in the Maharashtra, yaar. There is fact in India. Irrespective of the parties, if you are belonging everything, you are connecting to a party, then you are illiterate, educated illiterate. इंडिया में होता है ये समझ लेना. And it is not the party against the party. We are a citizen, we are Indians, we have to think from the larger perspective. ये है एक reality भी है. कहाँ पे ना कहाँ पे reality है. You will accept or you may not accept. So अगर try to understand, तो क्या होता है जब उसको प्राइवेटाइज किया गया तो प्राइजेस इंक्रीज हो गए. ए पुअर कैन नॉट अफोर्ड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो प्राइवेट स्कूल्स देते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये रियलिटी है. ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं दूसरी बात देता हूं, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं. रेलवेज में अगर ऐसे कर दिया, या एग्जांपल टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड, रेलवे स्टेशन पे, बस डेपो पे जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, अगर वो प्राइवेटाइज कर दिया तो दे विल स्टार्ट चार्जिंग एनी प्राइस. जैसे आप थिएटर में जाके पार्किंग करते हो, 30 रुपीज पार्किंग देते हो, 50 रुपीज पार्किंग देते हो, ये देते हो नहीं देते हो. वही अगर पुणे म्युनिसिपल कैंप में पार्क करो, 5 रुपए देना है. ऐसे क्यों फर्क? फिर वहां पे पार्क करके तो 5 रुपए देना है और थिएटर में जाके 50 रुपीज देना है. आप बोलोगे सर अंडर लाइक ये है, लाइक वहां पे धूप में नहीं रहती वगैरह, लेकिन 10 टाइम्स फॉर 3 आवर्स. क्यों? बिकॉज वो प्राइवेटाइज है. प्राइवेट ऑब्वियसली दे विल रिकवर द कॉस्ट एंड दे विल मेक ए सुपर प्रॉफिट. वही होता है. सो जो पब्लिक यूटिलिटीज है, लाइक रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन, राइट, हेल्थ सर्विसेज, उनको अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करती है, गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज किया है बिकॉज गवर्नमेंट कैन नॉट डू द ऑल बिजनेसेस, दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग. बट गवर्नमेंट समटाइम्स रेगुलेट द प्राइजेस. गवर्नमेंट, लाइक एग्जांपल ड्यूरिंग लॉकडाउन और जो कोरोना के लिए, उन्होंने गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देके उनको प्राइस कितनी लगानी, क्या लगानी, सब डिसाइड किया था. तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि फिर गवर्नमेंट को इन लाइक बीच में आना पड़ेगा. सो पब्लिक यूटिलिटीज अगर प्राइवेटाइज होते हैं तो उनके केस में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर होगा. हम तुम सबको एक्सप्लॉयटेशन होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट अगर वही गवर्नमेंट के अंडर रहता है, पब्लिक यूटिलिटीज मतलब मैं एक्चुअल नेसेसिटीज की बात कर रहा हूं, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटाइजेशन, इन चीजों की मैं बात कर रहा हूं. अगर ये गवर्नमेंट के पास रहेंगे तो गवर्नमेंट विल सब्सिडाइज देम, लाइक योर एलपीजी सिलेंडर, बराबर, तो उसकी प्राइसेस कम है. अगर वही प्राइवेटाइज होता है तो प्राइसेस ज्यादा होगी. ये समझना इंपॉर्टेंट है. एसबीआई वर्सेस एक्सिस, एसबीआई वर्सेस ऐसे है, चेक द फीस. एसबीआई की फीस एंड आईसीआईसीआई की फीस इज वेरी लार्ज. ये प्राइवेटाइज्ड है. दे प्रोवाइड द सर्विसेज ऑब्वियसली, बट ए पुअर कैन नॉट अफोर्ड दैट सर्विसेज. ये समझना है. अगर गवर्नमेंट ने बंद कर दिया ना एसबीआई, तो ये लूटना स्टार्ट कर देंगे, ये भी फैक्ट है. अगर गवर्नमेंट ने पीएमटी बंद कर दी, ये प्राइवेटाइज वाले लूटना स्टार्ट करेंगे. गवर्नमेंट ने जेडपी के स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स बंद कर दिए तो प्राइवेट वाले लूटना स्टार्ट करेंगे, ये भी फैक्ट है. इसलिए गवर्नमेंट उसमें है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो व्हाई गवर्नमेंट डिसाइड द पब्लिक यूटिलिटीज. गवर्नमेंट ये नहीं बोलते कि प्राइवेट वाले काम मत करो, बट बाय बीइंग इन कंपटीशन, उनके कंपटीशन में रह के, राइट, वो प्राइजेस को कंट्रोल करती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो ये आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट, राइट. टैक्स द रिच, यहां पे लिख लेना, टैक्स द रिच. और टैक्स द रिच, या दूसरा आप लिख सकते हो टैक्स द रिच, और दूसरा इसमें पॉइंट लिख देना, राइट. दूसरा पॉइंट, राइट, नेसेसिटीज, राइट, हायर टैक्स. बट मैं नेसेसिटीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं उन नेसेसिटीज की बात नहीं कर रहा हूं, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मैं उन नेसेसिटीज की बात नहीं कर रहा हूं. मैं कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज की बात कर रहा हूं. कौन से कॉन्स्पिक्यूअस? अकाउंट्स में आपने सीखा होगा, राइट. अकाउंट्स में आपने सीखा होगा, अकाउंट्स में आपने सीखा होगा, या सीए फाउंडेशन में कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज, बोगस नेसेसिटी बोल के कंसेप्ट होती है. ये मोबाइल हैज बिकम नेसेसिटी ऑफ माइंड, इट इज अ कॉन्स्पिक्यूअस. ये एक्चुअल नेसेसिटी नहीं है बट बन चुका है बिकॉज ऑफ कांस्टेंट यूज. तो उनके केसेस में गवर्नमेंट टैक्सेस जगह लगाती है, एंड जो एक्चुअल नेसेसिटी होते हैं ना,
उनके केस में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ठीक है, पब्लिक, जिनको पब्लिक यूटिलिटीज बोल सकते हो। आगे, इंपॉर्टेंट इन फैक्टर प्राइसिंग, इंपॉर्टेंट इन फैक्टर प्राइसिंग, यस। एग्जाम्पल, जो स्किल्ड लेबर होते हैं, स्किल्ड लेबर, वो मिलते नहीं इजीली, दे क्लेम हायर प्राइस बिकॉज उनकी डिमांड इनइलास्टिक, एवरीवन डिमांड्स देम, तू कितना भी प्राइस बोल हम तुझे देंगे। जो स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर की वेजेस कम होते हैं बिकॉज वो इजीली अवेलेबल होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो the concept of the elasticity of the demand is useful in determination of the factor prices, cost, like factors of production, land, labor, capital and entrepreneur. जो लैंड फर्टाइल लैंड है उसकी प्राइस ज्यादा रहती है देन विच इज नॉट फर्टाइल। क्यों? जो लेबर, स्किल्ड लेबर है, उसकी प्राइस ज्यादा रहती है देन द अनस्किल्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे इलास्टिसिटी की कंसेप्ट है। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर विच डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक मतलब वो इजीली अवेलेबल नहीं होते। एग्जाम्पल, स्किल्ड लेबर, एग्जाम्पल फर्टाइल लैंड, लिख लेना वहां पे। कैन डिमांड और कैन कमांड हायर प्राइस एज कंपेयर टू दोज हैविंग इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर, जब नेक्स्ट ईयर आईपीएल का ऑक्शन होगा, द प्राइस डिमांड फॉर द बुमराह, डिमांड फॉर पांड्या, डिमांड फॉर धोनी, कोहली, रोहित विल बी इनइलास्टिक। वो जितने भी प्राइस आएगा एवरीवन विल फॉर देम। प्राइस इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज नहीं हो रही, उनकी डिमांड है ही। एवरीवन इज रेडी टू पे 15 करोड़ टू कोहली, रोहित, बुमराह। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वो उनकी डिमांड इलास्टिक हो गई, उनकी प्राइस ज्यादा रहेगी। बट जो नए प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे, उनकी डिमांड इलास्टिक है। अगर उनकी प्राइस ज्यादा होगी तो लोग बोलेंगे जाने दे, इनमें क्यों इन्वेस्ट करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स कैन आस्क फॉर हायर वेजेस इफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। ओके, इससे और एक चीज मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, आपने सुना भी होगा, आई थिंक गुजरात में, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, गुजरात में देयर इज अ ज्वेलर्स, एक ज्वेलर है जो उनके एम्प्लॉइज को दिवाली बोनस के तौर पे फ्लैट गिफ्ट करता है। दिवाली बोनस के तौर पे उनको मर्सिडीज कार्स गिफ्ट करता है। ऐसा एक एम्प्लॉयर है, ऐसा ज्वेलर है जो उनके एम्प्लॉयज को इतना सारा देता है। एंड दूसरा तब अपने आकुर्डी पीसीएमसी में, जहां पे बजाज ऑटो लिमिटेड था, फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपको पता भी नहीं होगा, बजाज ऑटो लिमिटेड था इन राइट पीसीएमसी, जिनके वर्कर्स 3 इयर्स स्ट्राइक पे थे, 3 इयर्स, कि हमें वेजेस इंक्रीज करके दो, वो इंक्रीज नहीं करवा रहे थे। अब ऐसे क्यों? एक ज्वेलर है, एक एम्प्लॉयर है जो उनके लेबर को इतने सारे वेजेस दे रहा है, इतने हायर वेजेस दे रहा है, एंड दूसरा बजाज ऑटो लिमिटेड है, राइट, जिनके प्रोडक्ट, जिनके लेबर्स को वो 3 साल से स्ट्राइक करे फिर भी वेजेस इंक्रीज नहीं करवा रहे। रीजन, द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय दिस वर्कर्स। जो ज्वेलर के पास वर्कर्स है वो डायमंड्स बना रहे, और डायमंड की डिमांड इनइलास्टिक है। सो भले ही उस ज्वेलर को, उन लेबर को ज्यादा वेजेस पेड करने पड़े, हायर वेजेस वो पे करेगा, एंड टू दैट एक्सटेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल आल्सो इंक्रीज, डायमंड की प्राइस इंक्रीज होगी, और जितनी प्राइस इंक्रीज होगी उसकी उतनी डिमांड होगी। सो ही कैन रिकवर दैट हायर वेजेस फ्रॉम कस्टमर्स। भले ही वो उसके लेबर्स को ज्यादा प्राइस देगा, ज्यादा वेजेस देगा, वो ज्यादा प्राइस, डायमंड की प्राइस इंक्रीज करेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। जैसे मार्केट में डायमंड की प्राइस इंक्रीज होगी, लोग उसकी डिमांड करेंगे, बिकॉज डायमंड, वो जो लेबर्स है गुजरात में, वो डायमंड्स बना रहे जिसकी डिमांड इनइलास्टिक है, इसलिए दे कैन क्लेम हायर वेजेस। दूसरा, वही अगर आप अकूडी की बात करते हो, बजाज ऑटो लिमिटेड, दोज वर्कर्स वर मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, एंड टू व्हीलर्स का मार्केट डिमांड, या अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड देखते हो रिलेटिवली इलास्टिक, उनको हायर वेजेस देने पड़ेंगे, तो टू व्हीलर की प्राइस इंक्रीज होगी,
एंड बाकी जो होंडा वगैरह उनकी व्हीकल्स है will become cheaper as compared to Bajaj vehicles, and demand for Bajaj vehicles will drastically decrease, and इनका ही जॉब चला जाएगा. मैनेजमेंट लेबर्स को वही समझा रही थी 3 साल से कि आप जो स्ट्राइक कर रहे हो उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज अगर हम आपको ज्यादा वेजेस देंगे तो हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी प्राइस मार्केट में इंक्रीज होगी, उसकी प्राइस इंक्रीज होने से उसकी डिमांड ड्रास्टिकली डिक्रीज होगी, एंड देयरफॉर हम आपको हायर वेजेस नहीं दे सकते. 3 साल उन्होंने समझा नहीं. लेटर ऑन बजाज ऑटो लिमिटेड इतना बड़ा प्लांट गॉट शिफ्टेड टू नगर औरंगाबाद रोड. इट इज 300-400 एकर्स प्रोजेक्ट. उस एरिया की सबसे बड़ी कंपनी हो चुका है. पुणे का जॉब उधर शिफ्ट हो गया, उधर एम्प्लॉयमेंट, एंड इवन एट ए लोअर वेजेस एज कंपेयर टू पुणे. पुणे में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उतनी है तो वेजेस भी ज्यादा देने पड़ते. उधर वैसे नहीं हुआ. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो जो प्रोडक्ट लेबर्स का वेजेस ज्यादा होगा नहीं होगा डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस. इफ दे आर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट विच आर इनइलास्टिक डिमांड, एम्प्लॉयर विल हैप्पीली गिव देम हायर वेजेस. इसलिए वो ज्वेलर हैप्पीली उनको ज्यादा वेजेस देता है. बट बजाज वाले जो प्रोडक्ट बना रहे उसकी डिमांड इलास्टिक है, वो नहीं दे पा रहे. मुझे उस ज्वेलर का नाम नहीं पता लेकिन मुझे उस बजाज का नाम पता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये समझ लेना बजाज इज क्वाइट फेमस, फिर भी वो वेजेस नहीं दे रहा है. आप बोलोगे सर ऐसे कैसे इतना बड़ा है? बिकॉज जो प्रोडक्ट वो बना रहा है वो इलास्टिक इन द नेचर है, एंड जो ज्वेलर जो प्रोडक्ट बना रहा है डायमंड्स वो इनइलास्टिक है. तो वही लिखा है, राइट? दिस इज गुड एग्जांपल. वर्कर्स कैन आस्क फॉर हायर वेजेस इफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट produced by them is relatively inelastic. Next, importance in the foreign trade. Yes, try to understand हमने कौन सी चीजें एक्सपोर्ट करनी चाहिए जिसके डिमांड मार्केट में इनइलास्टिक है. इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी डिमांड इनइलास्टिक है ना, आप उसको एक्सपोर्ट करो, यू विल अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो वही लिखा होगा, द कंसेप्ट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इज यूजफुल टू डिटरमाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस इन द फॉरेन ट्रेड. The countries exporting commodities for which demand is relatively inelastic can raise their prices. अगर इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड इनइलास्टिक है तो उसमें बिजनेस करो. लाइक ओपेक कंट्रीज वही करती है. ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये सऊदी वगैरह, वो क्या एक्सपोर्ट करते हैं? ऑयल. क्या? पेट्रोल, डीजल. उसकी डिमांड क्या है? इनइलास्टिक. Therefore, they can raise the price. Try to understand. ये समझना इंपॉर्टेंट है. इन देखो कोई भी मार्केट वो इसमें बिजनेस करो. ध्यान देना, बिजनेस करने के दो तरीके. अगर आप जिस प्रोडक्ट में डील करो इनइलास्टिक है, प्राइस इंक्रीज करो. अगर इलास्टिक है तो प्राइस कम करो. सिंपल तरीका है बिजनेस करने का. अपने आप सक्सेसफुल होगे. ऑब्वियसली बाकी भी चीजें होती है बट इतना तो समझना बेसिक थिंग है. सो वही लिखा है, the countries exporting commodities for which demand is relatively inelastic can raise the prices. Like OPEC countries have increased the prices of the petrol over several times. The concept is also useful in formulating the export and import policy of the country. Public utilities हमने discuss किया. In case of public utilities like railways, which have an inelastic demand, government can either subsidize them or nationalize them to avoid consumer exploitation. Proportion of the expenditure. If proportion of the expenditure, अच्छा ये भी important है. Like EMI is very important in your expenditure because वो almost 60-70% आपकी इनकम खर्च करता है उस पर. So EMI के केस में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा भी इंक्रीज होता है तो यू कैन फाइंड द पीपल आर वेरी सेंसिटिव. आपकी ट्यूशन फीस, स्कूल ने ट्यूशन फीस इंक्रीज की, पेरेंट्स स्ट्राइक पे जाते हैं. क्यों? Because they are spending 80,000, 90,000, 1 lakh, 1,20,000 of their income on that. So अगर 10% भी प्राइस इंक्रीज होती है तो 12,000, 25,000 फी इंक्रीज होती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप बोल रहे हो 10% बट द अमाउंट देखो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो जो चीजें आपके एक्सपेंडिचर में बहुत मायने रखते हैं ना, उसकी प्राइस चेंज होने से हम हिल जाते हैं. वही बटन, वही सॉल्ट, वही न्यूज़पेपर. आप कितना खर्चा करते हो रे पूरे मंथ में? मुझे नहीं लगता आप उससे 100 से खर्चा करते होंगे. उनकी प्राइस इंक्रीज होने से आपको फर्क पड़ता है क्या? नहीं.
तब देखो क्या लिखा है, आई डोंट नो लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में रॉन्ग लिखा था, इस बार क्या लिखा है देखना है. इफ द प्रोपोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर इन द पर्सन्स इनकम इज स्मॉल देन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज रिलेटिव. इस बार करेक्ट किया उन्होंने. सॉल्ट परचेस करते हो, कितने का सॉल्ट परचेस करते हो? लड़कियों को पता होगा, मुझे नहीं लगता 10 400 बहुत बोल दिया, 100 to 100 से रुपीज का एक मंथ में आपको लगता होगा सॉल्ट. जितना उस पे एक्सपेंडिचर कम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको फर्क नहीं पड़ता उसके प्राइस से. यू आर इनइलास्टिक इन द नेचर. ऑन द कॉन्ट्ररी, लाइक एग्जांपल इज न्यूज़पेपर्स. इफ द proportion of the expenditure is large, then the demand for the product is relatively elastic. Example, EMI. Another example, school fees. आपने पढ़ा होगा कि पेरेंट्स गोज ऑन स्ट्राइक, बराबर ना, स्कूल फीस, राइट? सो दैट इज, सो द कंसेप्ट ऑफ द इलास्टिसिटी इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर टू डिसाइड whether to increase the price or decrease the price. लग्जरी में डील करा तो प्राइस कम कर, नेसेसिटीज में तो प्राइस इंक्रीज कर. गवर्नमेंट लाइक नेसेसिटीज, कोई ऐसे नेसेसिटीज होते हैं जिन पे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्सेस लगाती है, राइट? बिकॉज गवर्नमेंट को पता है लोग फिर भी परचेस करेंगे. एंड ऐसे भी नेसेसिटी होती है जिसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करता है, जिसको पब्लिक यूटिलिटीज में डाल दो, ठीक है? इंपॉर्टेंस इन द फैक्टर प्राइसिंग. वेजेस ज्यादा देने नहीं देने डिपेंड्स ऑन demand for the labors as well as demand for the product that they manufacture. अगर try to understand, right? So जो लेबर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इलास्टिक इन द नेचर है, लाइक बजाज ऑटो, दे कैन नॉट गिव हायर वेजेस. बट अगर लेबर जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, लाइक डायमंड का एग्जांपल मैंने दिया, दे कैन इजीली इंक्रीज द वेजेस. देन इंपॉर्टेंस फॉर द फॉरेन ट्रेड, राइट? जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर उसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में इनइलास्टिक है तो प्राइस इंक्रीज करो, अगर वो इलास्टिक है तो प्राइस कम रखो. दैट इज द वे ऑफ डूइंग द बिजनेस, बराबर? सो ऑयल ओपेक कंट्री वही करती है, पब्लिक यूटिलिटीज एंड द प्रोपोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर. अगर आप थोड़ा ही खर्चा करते हो उस चीज पे तो आपको फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपका मेजर पोर्शन इनकम उस पर जाता है और उसमें चेंज होता है, कम भी होता है, यू आर मोर हैप्पी, इंक्रीज होता है, यू आर मोर टेंस्ड. ईएमआई कम होता है, यू आर वेरी हैप्पी, बट अगर वही इंक्रीज होता है, यू आर वेरी टेंस्ड, बिकॉज मेजर पोर्शन जाता है. यू आर सेंसिटिव, मतलब यू आर इलास्टिक इन द नेचर, ठीक है? सो यहाँ पे मेरा इलास्टिसिटी आज मैंने ऑलमोस्ट रिवाइज भी किया पूरा चैप्टर, एंड हमने वो कंप्लीट भी किया, ठीक है? सो अब एक ही कंसेप्ट बाकी है. I will be taking lectures alternate day in this week. ट्यूसडे को लेक्चर लूंगा, फिर ऐसे अल्टरनेट डे लूंगा इको का लेक्चर, ठीक है? सो दैट वी कैन रिवाइज द एंटायर फर्स्ट 5 चैप्टर्स. आई विल रिवाइज ऑल द चैप्टर. आने वाले इस वीक में आई नीड 3 to 4 लेक्चर्स जो मैं इस वीक में लेने वाला हूं, बिकॉज मैम में नहीं है तो आई हैव द टाइम, मैं ले सकता हूं लेक्चर्स. सो आई विल रिवाइज द फर्स्ट 5 चैप्टर्स 1 to 5, ठीक है? एंड देन फ्रॉम द कमिंग संडे वी कैन स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट, इंडेक्स नंबर वगैरह, ठीक है? थैंक यू. नहीं, देयर आर सम स्टूडेंट जो बोल रहे सर कोई मंदिर ने किया, मैं मानता हूं, जैसे मैंने बोला गुरुद्वारा का मैंने एग्जांपल दिया. देयर आर सम टेंपल जो करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, बट कोई टेंपल से ना जो नहीं करते, दैट इज रॉन्ग. ये मैं बोल रहा था, जब जरूरत है ना तब हेल्प करनी चाहिए. अरे तुम लोग, हम लोगों ने की हेल्प कितना, हम एक बंदे को तो खिलाया होगा हमने. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो हम पैसे डालते हैं, देखो आई एम नॉट अगेन द टेंपल, बट मैं अब भी तो मैं कहाँ पे किसी टेंपल में पैसे नहीं डालता, मैं पहले डालता भी था, टू बी वेरी फ्रैंक, बट मैंने वो बंद कर दिया. इस दौरान मैंने जो देखा है ये लॉकडाउन के बाद, तो मैंने वो बंद कर दिया. मैंने खुद से एक वादा किया कि मैं टेंपल में जाऊंगा बट मैं पैसे नहीं डालूंगा. वही अगर कोई बाहर बैठा है भिखारी, उसको देते ना, तो दैट विल गिव यू मोर सेटिस्फैक्शन. ये समझ लेना, इट्स योर चॉइस एट द एंड ऑफ द डे. इस्कॉन वाले करते रियली गुड, आई अप्रिशिएट दैट. कोई टेंपल्स करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, उसमें कोई गुंजाइश नहीं.
there are, sir, don't you think privatization including price caps is obviously, देखो प्राइवेटाइजेशन के बेनिफिट अच्छे, सोशलिज्म के भी बेनिफिट है. चाइना इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ सोशलिज्म, इंडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ मोर ऑफ प्राइवेटाइजेशन. तो दोनों के बेनिफिट है, ऐसे नहीं है. रशिया भी स्ट्रांग है, यूएस भी स्ट्रांग है, बट उसके डिमेरिट्स भी होते हैं. हर चीज अच्छी नहीं होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. उसके डेमेरिट्स भी हो सकते हैं, तो हमें कुछ कंट्रोल भी करना होता है. ओके चलो, थैंक यू. सो इस वीक में हम पूरा रिवाइज करेंगे. सैटरडे को आपकी टेस्ट रहेगी. मैं एक बार पूरे 5 चैप्टर्स इन डिटेल रिवाइज करूंगा. थैंक यू.